at this time. We can go for the webinar or academic session. It is one of the best way to optimally utilize our free time during lockdown because of COVID-19. Therefore, Motherhood University is continuously working to organize such sessions, and through this webinar, Faculty of Commerce and Business Studies add one more link to the chain. This webinar is organized by Motherhood University in association with Association of Mutual Funds in India, and it's our immense pleasure that our both speakers have an expertise in field of investment. So before hand over the session to our keynote speaker, Mr. Suryakant Sharma sir, I will provide you all a brief profile view of Mr. Sharma sir. So Mr. Suryakant Sharma is a commerce graduate and a master's in law with specialization in corporate laws. He is also chartered associate of Indian Institute of Banking and Finance. Shri Sharma has over 20 years of experience in banking and finance and has served in a leading financial institution as well as in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. Shri Sharma joined SEBI in 2003 and served there for more than 15 years. Lastly, he was Deputy General Manager in charge of Office of Investor Awareness and Education in SEBI's Northern Region for more than 5 years. Under his supervision, more than 15,000 awareness programs were conducted across North India, and he himself has addressed as a guest speaker in more than 500 IAPs. After superannuation from SEBI in 2019, he has joined Association of Mutual Fund in India, an apex body of mutual fund in India, as a senior consultant. I welcome you, sir, on behalf of the panel of webinar. Now, without taking more time, I would like to hand over the session to our keynote speaker, Mr. Suryakant Sharma, sir. So, Suryakant Sharma, sir, now please, you can continue for the session. Hello. Am I audible to sir? Saurabh sir, am I audible? Yes, sir. Yeah. Okay. Please continue, sir. Thank you very much. सबसे पहले मैं प्रोफेसर पीके अग्रवाल साहब का निजी तौर पर आभारी हूँ। उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। साथ में मैं आपके पूरे स्टाफ को, पूरी आईटी टीम को, पूरे जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने में सहयोग दिया है, मैं उनका भी आभारी हूँ। और जो पर्दे के पीछे काम करें डॉक्टर कपिल गर्ग जी, जो ही हमें इस वेबिनार के लिए जोड़ पाए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज के संदर्भ में सारी दुनिया का सोच, समझ, आचार, विचार, रहन सहन सब पिछले 2-3-4 महीने में बदल गया है। हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कोविड-19 ने हमारा सब कुछ बदल दिया है। जैसा अभी सौरभ साहब बता रहे थे कि हम घर में आराम से बैठे हैं, हम रिलैक्स हैं, लेकिन हमारे बहुत असंख्य हमारे साथी, हमारे देशवासी और पूरी दुनिया में असंख्य करोड़ों लोग हमारे जैसे भाग्यशाली नहीं हैं। वो परेशान हैं अपने आजीविका के लिए, अपनी रोटी रोजी के लिए, दिनचर्या के लिए, दैनंदिन की जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए। तो कोविड-19 ने जो पहला हमें सबक सिखाया है, वो जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला है और शायद अवसर भी मिला है कि हम आत्मनिर्भर बने। ये एक अवसर है हमारे लिए, जैसा ये आह्वान भी किया गया है, हम सभी उसके लिए तैयार हैं। दूसरा, हमारे देश को सोशल कैपिटल पूरी दुनिया में मिली है। सोशल कैपिटल इस सेंस में कि जिस तरह से पूरी दुनिया को इस कोविड-19 ने प्रभावित किया है, हमें आज तक कम से कम हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उस विभीषिका से हमें उस लेवल पर हमने उसने अभी नहीं छुआ है। और हमें आशा है कि इस दौर से हम निकलेंगे, कम से कम हानि के साथ निकलेंगे और पुनः अपने को इस तरह से तैयार करेंगे कि हम एक समृद्ध और एक शक्तिशाली देश के रूप में सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आए। कोविड-19 आप सभी जानते हैं, 2-3 बातें बार बार कहने की रिपीट नहीं है। हमें किस तरह से इससे जूझना है, किस तरह से बचना है,
किस तरह से इससे निकलना है, ना सिर्फ अपने को बल्कि अपने परिवार को, अपने मित्रजनों को। तो सबसे पहले अपना आप ध्यान रखिए, ये सबसे पहली प्लानिंग है। आपका अपना ध्यान, परिवार का ध्यान, फिर आस पड़ोस का ध्यान, आपसे जुड़े हुए लोगों का ध्यान जब आप रख पाएंगे तो भी हम भविष्य के बारे में कुछ सोच पाएंगे। जहां तक अपने इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्वेस्टमेंट आपसे जैसा सभी जानते हैं कि इस अकल्पनीय दौर में जहां भी हमने अपने निवेश कर रखे हैं या निवेश के प्लान कर रखे हैं या निवेश का सोच रखा है, वो सारे सेक्टर्स पूरी दुनिया में आज डाउन है। सिर्फ एक गोल्ड में तेजी आई है, आप सभी जैसा जानते हैं। अब उसके कारण भी कुछ अर्थशास्त्री बड़े बड़े असमंजस हैं कि उसमें तेजी क्यों आई है। कुछ ऑयल में जो कम कंजम्पशन में कमी हुई है उसका कारण बताते हैं, कोई हेजिंग का कारण बताते हैं, और कंजम्पशन में कमी आई है उनको कारण बताते हैं। लेकिन गोल्ड के अलावा पूरी दुनिया में सारे सेक्टर्स में कमी आई है। जहां जहां आपने, एक्सेप्ट बैंक डिपॉजिट्स में जहां आपने पैसा लगा रखा है। लेकिन मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, बैंक डिपॉजिट्स में, एफडी में, अब वो इन्वेस्टमेंट लुक्रेटिव नहीं है, वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट आपके लिए हितकारी नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो ब्याज की दर लगातार कम होती जा रही है, और दूसरा जो है, उसके अलावा ब्याज की दर के साथ साथ अब महंगाई, आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है। तो अगर आपने कहीं एफडी में 5 लाख रुपए लगा रखे हैं तो आपको करीब 30,000 रुपये आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा। ये बात सही है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम निकाल देते हैं, वो है महंगाई। महंगाई अगर 5% से भी माने तो 25,000 रुपया हमारा महंगाई में चला जाएगा, बाकी बचा 5,000 रुपया। और फिर 30,000 में से 10,000 जो आपकी इंटरेस्ट फ्री पैसा है, बाकी 20,000 पर आपका टैक्स लगेगा, और टैक्स आपकी स्लैब के अनुसार लगेगा। तो इस तरह से एफडी एक सिक्योरिटी देती है, लिक्विडिटी भी रीजनेबल देती है, लेकिन रिटर्न में शायद एफडी भविष्य में अभी शायद आपके लिए इतना लाभ का सौदा ना हो। दूसरा म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटी मार्केट आप जानते हैं बुरी तरह डाउन है, 30-35% अभी तक डाउन रहा है। लेकिन भविष्य के लिए आपकी अगर कहीं संभावना बनती है और हमारा देश अगर टर्न अराउंड करता है और आर्थिक व्यवस्था में सुधार आता है, तेजी आती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, तो जो जो सबसे तेजी से बढ़ेगा वो हमारा सिक्योरिटी मार्केट में, उसमें उछाल आएगा, उसमें बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो वो आगे की बातें हैं। रियल एस्टेट आप जानते हैं पहले से ही डाउन था, अभी भविष्य में कोई संभावना ही नहीं है कि रियल एस्टेट बहुत तेजी से कहीं निकलेगा। तो मैं आपको 2-3 निवेदन करना चाहूंगा आज के कंटेक्स्ट में, और आशा करता हूं कि आप अपने बारे में सबसे पहले सोचिए। तो सबसे पहला निवेदन मेरा, और जो प्राथमिक निवेदन है, वो ये है कि कृपया करके अपने अगले 1 साल की जो आपके घर खर्च है उसके लिए पर्याप्त पैसा अलग रख लें। माना आपके घर खर्च जैसे अगर 50,000 रुपया है, तो कम से कम 6 से 8 लाख रुपया आप अपने एक अलग निश्चित तौर पर, चाहे अपने एसबी अकाउंट में रखें, चाहे शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में रखें, चाहे अल्ट्रा शॉर्ट फंड लिक्विड फंड में रखें, आप जहां आप चाहें आप रखें, आपकी इच्छा है। लेकिन ये पैसा आप अलग जरूर रख लीजिए। दूसरी, अगर आपके अगले 1-2 साल में कोई फाइनेंशियल और सोशल कमिटमेंट है, आपको कोई घर में कोई परिवार में शादी करनी है, कोई आपके मेडिकल एक्सपेंसेस है, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके लिए पर्याप्त पैसा दोनों के लिए अलग रख लें। ये दोनों चीजों के लिए पैसा निवेश के सोचने से पहले अलग करना है। तो सबसे पहली बात, जितना पैसा अगर आपके पास है अगले 1 साल के लिए, उसमें आप महंगाई का फैक्टर भी जोड़ लीजिए, क्योंकि संभावना ऐसी है कि अगले आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई की वजह से हमारा घर खर्च भी बढ़ेगा। तो 1 साल के लिए मिनिमम 1 से 1.5 साल के लिए जो आपका घर खर्च है उसको अलग कर लीजिए। अगर कोई आपका फाइनेंशियल और सोशल कमिटमेंट है अगले 1.5 साल के लिए, उसके लिए जो आपको धनराशि चाहिए वो अलग कर लीजिए। उसके बाद में
अगर आपके पास कुछ पैसा सरप्लस बचता है, मैं दोबारा जोड़ निवेदन कर रहा हूं, अगर कुछ पैसा सरप्लस है तो उस पैसे का होराइजन आप देखिए। अगर वो पैसा आपको 1 साल में चाहिए, 1.5 साल में चाहिए, तो उस पैसे को आप डेट फंड में डाल सकते हैं। डेट फंड में भी ट्रिपल ए रेटिंग के जो डेट फंड्स हैं, जिन्होंने डेट फंड, ऐसे डेट फंड जिन्होंने ट्रिपल ए रेटिंग में या सोवरेन बॉन्ड्स में पैसा लगाया हुआ है, उसमें आप पैसा डालिए। आपका पैसे की तकरीबन सुरक्षित रहता है और उसमें एक रीजनेबल रिटर्न आपको बैंक डिपॉजिट से ज्यादा मिलता है। और 3 साल तक अगर वो पैसा आपके पास रहता है तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का फायदा भी होगा। अभी आप, मेरे जो अगले वक्ता हैं, वो शायद इंडेक्सेशन के बारे में आपको विस्तार से बताएं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है। तो आपको ये डेट फंड में 3 साल बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है। अगर आपको और सरप्लस पैसा है जो आपको 3 और 5 साल के लिए आपको जिसकी आवश्यकता नहीं होगी, उस पैसे को आप अलग करके इक्विटी फंड में, हाइब्रिड फंड में, एडवांटेज फंड में, बैलेंस फंड में आप डाल सकते हैं। ये मैं आपको एक व्यक्तिगत राय भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक सिर्फ आपको एक मतलब एक सलाहकार की तरह से सलाह नहीं दे रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरा निवेश है और मेरा जिस तरह से निवेश से मुझे रिटर्न मिला है, मैं उसके बेस पे आपको कह रहा हूं कि अगर आपको 3 से 5 साल तक का होराइजन है तो हमारे देश में बहुत संभावना है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो उसका रिटर्न भी बढ़ेगा, और रिटर्न होगा तो आपको सब निवेश जिन्होंने इस टाइम पैसा डाला हुआ है, जब मार्केट 30, 31, 32 के आसपास है और मार्केट अगर 40 जाता है, 50, 45 जाता है 3 साल बाद, 2 साल में, जिसकी संभावनाएं पूरी है, अगर कोई अनहोनी जैसे ये हो गई न हो जाए तो ये स्वाभाविक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये पैसा आप अपने इक्विटी फंड में डालिए, बैलेंस फंड में डालिए। इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड में डाल सकते हैं आप, जो मीडियम सेक्टर्स की जो डेट फंड्स उनमें डाल सकते हैं, स्मॉल सेक्टर में डाल सकते हैं। पैसे को अपने इन्वेस्टमेंट को तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो ये तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। लेकिन एक बात मैं और जो आपको कहना चाहता हूं, और जो आर्थिक जो इतिहास के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जब जब आर्थिक मंदी आती है, जब तक चीजें डाउनटर्न जाती है, तो एक हमारे समाज में एक अलग तरह की धारा बहने लगती है। वो धारा है स्कैमस्टर्स की, जो आपको लालच देकर, आपको हाई रिटर्न का एश्योरेंस देकर, उसके साथ साथ और इंसेंटिव देकर आपसे ये पैसा लेना चाहेंगे। और क्योंकि उस टाइम मार्केट और कोई सेक्टर चलता नहीं है, बैंक्स में इंटरेस्ट कम हो गई, वो आपको अगर 12, 15, 18% रिटर्न देते हैं, तो हमारी जो एक अंदर से जो ग्रीड का जो एलिमेंट है वो उठकर बाहर आ जाता है, और उस ग्रीड में हम उनमें पैसा लगा देते हैं। मैं आपको ये जिसे साधारण भाषा में पोंजी स्कीम भी कहा जाता है, ये इसका जो उद्गम हुआ, एक चार्ल्स पोंजी हुआ करते थे, इटली के व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका में ऐसी स्कीम चलाई 1920 में कि उन्होंने जो कूपन मिलते थे, पोस्टल कूपन, उनका उन्होंने हेज किया, आर्बिट्रेज किया, और उससे उन्होंने लोगों को 18 से 20, 25% तक रिटर्न देने का उन्होंने एश्योरेंस दिया, और 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत पैसा जमा कर लिया। अब आप समझ सकते हैं 1920 में उस समय निवेशकों को $20 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये बहुत बड़ा उस टाइम स्कैंडल था, लोगों को पैसे लेकर डूबने वाली बात थी, इसलिए उनके नाम पर ये पोंजी स्कीम चली आ रही है। हमारे देश में भी गत वर्षों में बहुत बड़े स्केल पर पोंजी, या जिसे हम अगर और टेक्निकल टर्म बोले तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स हमारे देश में चलती रही हैं। गांव में चलती है, कस्बों में चलती है, शहरों में चलती है, और उसमें चलने के पीछे जो उनके 2-3 यूनिकनेस होती है। वो क्यों चलती है? पहला यूनिकनेस उसका है, वो है हाई रिटर्न, वो आपको एश्योर करते हैं। हाई रिटर्न किसके कंपैरिजन में? बैंक डिपॉजिट के कंपैरिजन में, सिक्योरिटी मार्केट के कंपैरिजन में, और कई सेक्टर में रिटर्न मिला उसके कंपैरिजन में। और आपका पैसा 3 साल में, 4 साल में डबल करने का आपको एश्योरेंस मिलेगा। तो एक तो सबसे पहला वो हाई रिटर्न आपको एश्योर करते हैं।
अब हाई रिटर्न कोई अश्योर करे, अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकाले, तो ज्यादातर चांसेज है कोई व्यक्ति उसमें निवेश नहीं करेगा। तो अगला उनका जो मॉडल होता है, जो मॉडल अब तक जो मॉडल चला है उनका, वो ये है कि जो वो स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर लोगों को अपने एजेंट बनाते हैं और उन एजेंटों को बहुत अट्रैक्टिव कमीशन दिया जाता है और उन एजेंटों को 4 5 10 स्कीम बनाकर उनको दे दी जाती है। हम भी, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी स्कीम बना के दे सकता है कि मैं 18% ब्याज मिलेगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, 5 लाख डालेंगे तो आपको ये और इंसेंटिव मिलेगा, 10 लाख डालेंगे और इंसेंटिव मिलेगा, एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। ऐसी स्कीमें उनको दी जाती है। और एक और स्कीम उनको दी जाती है कि आप छोटे स्तर पर भी लोगों से पैसा ले सकते हैं। तो वो अब वो जो एजेंट बनते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वाभाविक है, वो किसके पास जाएंगे, जो उनके जानकार हैं, जो उनके परिचित हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनकी मित्र मंडली है, वो उनको ही जाकर कन्विंस करते हैं कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, ये बहुत कंपनी की स्कीम आई है, बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें पैसा लगाइए, आपको रिटर्न मिलेगा, मैं आपके लिए खड़ा हूं। और ये हमारी त्रासदी है कि अगर मैं आपसे कोई आपको स्कीम के बारे में बात करूं तो शायद बात आई गई हो जाएगी, उड़ जाएगी बात, आप मेरी बात सुन भी लेंगे, शायद कुछ लोग थोड़ी गहराई से भी सोचेंगे, लेकिन निवेश नहीं करेंगे। लेकिन वो जो लोकल आदमी है, जो आपका परिचित है, आपका मित्र है, आपका परिवार वाला है, वो अगर आपको कन्विंस कर रहा है, बार बार कन्विंस कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं खड़ा हूं, तो उसके भरोसे पर आप वहां निवेश करेंगे। तो दो बातें हो गई, ग्रीड और एक लोकल एलिमेंट, लोकल एजेंट एलिमेंट। इन दोनों के दम पर ये ऐसी स्कीम अब तक चलती आई है। और हमारे देश में ऐसा मोटा मोटा अनुमान है कि करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपया हमारे देश में लोगों का डूब गया ऐसी स्कीम्स में। और उस डूबने में भी किसका ज्यादा डूबा है, ये बड़ी हमारी दुखदायी स्थिति है कि उसमें करीब करीब 90 से ज्यादा % लोग गांव के अशिक्षित लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो रोजी बसर करते हैं, वो लोग होते हैं। वो बहुत अपनी मेहनत से, अपना पेट काट कर, अपनी आवश्यकताओं को और कम करके, जो पहले ही कम है और भी कम करके कुछ पैसा बचाते हैं और वो पैसा ऐसे लोग लूट कर चले जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, और ये तथ्यात्मक उदाहरण है, इसलिए देना चाहता हूं। और क्यों देना चाहता हूं, उसके पीछे मेरे मकसद ये है कि आप तक ये बात बड़े प्रभावी तरीके से पहुंचे। एक कंपनी थी PACL, उसका पहले नाम था पंजाब एग्रो एंड केमिकल्स लिमिटेड। उस कंपनी में सरदार भंगू साहब थे, पंजाब में पहले किसी टाइम में वो दूध बेचा करते थे। लेकिन वो आदमी बड़े स्मार्ट थे, समझदार थे, आप हमसे भी ज्यादा समझदार थे। तो उनका दूध बेचने में मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, इसमें क्या फायदा। तो उन्होंने PACL कंपनी बना ली। कंपनी में उन्होंने ऐसे स्कीम्स बना लिए 3 साल में डबल कर देंगे, 18% ब्याज देंगे, एक अमाउंट डालेंगे तो ये इंसेंटिव, उससे बड़ा अमाउंट डालेंगे तो ये इंसेंटिव, उसके बड़ा अमाउंट ये डालेंगे। ये स्कीम उन्होंने बना दी और उन्होंने गांव के लोकल लोगों को अपना एजेंट बनाया। गांव के और कस्बों के लोकल एजेंटों को, आदमियों को उनका एजेंट बनाया। उनका काम उल्टा था, बैंकिंग के लिए हमें बैंक के पास जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने उल्टा किया कि एजेंट आपके घर पे रोज आएगा। और स्थिति में आपको बताता हूं कि वो एजेंट घर पे जाते थे, कोई चाय वाला है, कोई पान वाला है, पान बीड़ी वाला है, कोई और छोटे मोटे काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मेड सर्वेंट है, किसान है, गरीब किसान है, उनके घर पे जाएंगे। डेली आपसे पूछेंगे सर आप आज कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे 5 रुपए जमा कर लीजिए। 5 रुपए तक से भी निवेश था उनका। 5 रुपए जमा कर लीजिए, 10 रुपए जमा कर लीजिए, 50 रुपए जमा कर लीजिए, जैसे भी उनकी सामर्थ्य थी वो जमा करता, उनकी पासबुक में एंट्री करता और एंट्री पैसे लेके वो कंपनी के जो वहाँ का लोकल जो ऑफिस है वहां चले जाता, आपको पासबुक दे जाता। आप अपनी जो पासबुक देखते कि लोग बड़े खुश होते, अब मेरे 800 रुपए हो गए, अब मेरे 1000 रुपए हो गए, अब मेरे 2000 रुपए हो गए हैं। आपके लिए शायद 2000 रुपए मायने नहीं रखते हो, लेकिन दोस्तों आज भी हमारे देश में करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए हजारों रुपए जिंदगी भर की पूंजी है। 1000 रुपया इकट्ठा उन्होंने बहुत कम समय के लिए या अपने पास रखा होगा। ऐसा बहुत मैं 1000 रुपये जबकि कितनी छोटी रकम है आप जैसे लोगों के लिए। ठीक है, वो पैसे लेके जाएगा कंपनी के ऑफिस। सपोज कीजिए उसने एक दिन में 1000 रुपये इकट्ठा किया, कंपनी के ऑफिस में जाएगा, 1000 रुपये जमा कराएगा, वहां के कैशियर को देगा, उसकी डिटेल देगा किसी से पैसे लिए,
और जो डिटेल पे वो कंपनी वाला कैशियर स्टैंप लगाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए, अगले काउंटर पे जाएगा, काउंटर को दिखाएगा कि मैंने 1,000 रुपये जमा करा दिए हैं, और उसको 30% हार्ड कैश कमीशन मिलेगा। मतलब 300 रुपया कैश कमीशन लेके वो अपने घर चला जाएगा। उसको कितना बड़ा इंसेंटिव था। तो ये इस कंपनी धीरे धीरे बढ़ती गई। सेबी इसके खिलाफ 22 साल पहले करीब राजस्थान हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका डाली कि जो कंपनी का कार्यभार ये गलत है, इसे ये वॉइड एबोनिशन है, इस कंपनी को बंद की जाए और इसके जो पैसे हैं लोगों को वापस किए जाए। उस समय कंपनी की जो टोटल मोबिलाइजेशन थी वो 4,000 करोड़ रुपए थी। मैं आगे न्यायिक व्यवस्था पर कुछ बात करना नहीं चाहता, मेरे वो सामर्थ्य भी नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं है। 4,000 रुपए मोबिलाइजेशन था। उसके बाद वहां से उनको स्टे मिल गया, स्टे के बाद में वो आगे बढ़ते गए और 2016 फरवरी 2016 में सेबी जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20 साल बाद कि ये कंपनी का जो बिजनेस है मॉडल ये ठीक नहीं है, गलत है, इसको कंपनी को बंद किया जाए, जितने भी डिपॉजिटर्स के पैसे हैं उनको वापस किया जाए और जो कंपनी की संपत्तियां हैं उनको बेचा जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर एम लोढ़ा के अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बना दी कि इन जो कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, संपत्तियां आप इकट्ठा कीजिए, इनको मार्केट में बेचिए और पैसा दीजिए। इन जस्टिस आर एम लोढ़ा जो अध्यक्ष थे उनको सेक्रेटरियल सपोर्ट सेबी ने दिया था पूरा। सेबी उनके साथ, सेबी उनके तहत काम कर रहा था। जब कंपनी को बंद किया गया तो कंपनी के पास से सीबीआई ने रेड मारकर कंपनी के सारे ऑफिस से 18,000 प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। मतलब कंपनी के पास 18,000 प्रॉपर्टीज थी अक्रॉस कंट्री। इवन बाहर जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कंपनी ने अपनी एक सब्सिडी खोल रखी थी, इतना पैसा उनके पास आ गया था। जब इकट्ठा किया, डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल किया, टेबुलेट किया गया, उनको एनालाइज किया गया, जब पता पड़ा कि 18,000 में से 13,000 डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है या फर्जी है। फर्जी इस सेंस में कि पैसा कंपनी ने दिया था प्रॉपर्टीज को लेने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी उनके मालिक के नाम से थी, उसके क्लर्क के नाम से थी, उसके किसी और अधिकारी के नाम से थी, कंपनी के नाम से लीगली नहीं थी। बड़ी मशक्कत के बाद 5,000 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की गई। ये 2016 से बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद उनका प्रोसेस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल डायरेक्शन दी थी कि पूरी इंडिया की कोई भी कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, कोई स्टेप नहीं देगी। सारे कलेक्टर्स को ऑर्डर दिए गए कि आप इनके हेल्प करेंगे, लैंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम आती है तो। इन सब के बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो जब कंपनी बंद हुई तब कंपनी की टोटल लाइबिलिटी, प्रिंसिपल लाइबिलिटी 54,000 करोड़ रुपया थी, 54,000 करोड़ रुपया। और जो कंपनी की जो देनदारियां थी, जिसमें ब्याज था और चीजें थी, वो टोटल मिला के करीब 89,000 करोड़ रुपया थी। 54,000 करोड़ प्रिंसिपल लाइबिलिटी थी, 89,000 उसकी टोटल लाइबिलिटी थी कंपनी की। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इस कंपनी में हमारे देश के 5 करोड़ 14 लाख लोगों ने निवेश किया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 5 करोड़ 14 लाख लोगों ने। इतना हो सकता है अगर किसी ने 2 स्कीमों में पैसा लगाया तो उसका डुप्लीकेशन हो गया हो। 5 करोड़ मान लीजिए, 4 करोड़ 90 लाख मान लीजिए, इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया। और इनमें से 95% लोग गरीब लोग हैं। गरीब से भी ज्यादा गरीब जिसे आप बोल सकते हैं, वो जो रोज मेहनत करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोग हैं। उनका पैसा डूबा है। कमेटी ने बहुत कोशिश की। उसके बाद में आज स्थिति ये है, क्या नाम है आपका? वही वाला। आज स्थिति ये है कि 3 साल की मेहनत के बाद भी कंपनी के कमेटी को सारे अधिकार होने के बावजूद भी कमेटी सिर्फ 4,300 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाई है। 90,000 करोड़ रुपया देने हैं।
4,300 करोड़ रुपए कंपनी कमेटी के पास आए। अब आप समझ सकते हैं ये पैसा कितने लोगों के पास जाएगा, कब जाएगा, बाकी लोगों के पास पैसा कब मिलेगा। मैं उदाहरण आपको इसलिए दिया कि बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा कई हजारों उदाहरण आपके नगर में, आपके कस्बों में होंगे जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं, और अब ये चीजें बढ़ने वाली है। इसलिए हमारा उद्देश्य हमने ये रखा है कि अगले साल, अगले 6 महीने में, साल भर हम सारा फोकस ये करेंगे कि लोग गलत जगह पैसा ना लगाएं। आप बैंक में रखिए, आपकी अगर आपका समझ है तो म्यूचुअल फंड में डालिए, अगर आपकी समझ है तो और कहीं डालिए, जो भी है, लेकिन पैसा गलत जगह नहीं लगाइए। अब भारत सरकार ने भी एक डिपॉजिट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स एक्ट 2019 पास कर दिया है, जिसके तहत ऐसी कंपनियों को पैसा लेना अब इलीगल हो गया है। ये लीगल बात हो गई, लेकिन इनके नए नए तरीके होते हैं। गांव में लोग इतने समझते नहीं है, और फिर जो लोकल एजेंट है उनको कन्विंस करता है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आसपास जितने भी लोग हैं, कृपया करके उनको आग्रह कीजिए, आगाह कीजिए, समझाइए कि किसी भी कीमत पर पैसा गलत जगह ना लगाएं। उनका पैसा 100% डूबने ही वाला है। होता ये है कि पहले लोगों को पैसा मिलता है, डबल 3 साल में लोग खुश हो जाते हैं, अपने और 5 साथियों को, परिवार वालों को कहते हैं कि ये तो देखो मुझे तो पैसे वापस मिले हैं, आप भी इसमें लगा दीजिए, और आप त्रासदी देखिए वो पैसा दोबारा वो उसमें रीइन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? कि उनको पैसा डबल हुआ। तो ये विश्वास जमता है उनका शुरू के अवस्थाओं में, और इससे ये ऐसी स्कीम्स, ऐसी चीजें जब तक चलती रहती है जब तक उसमें नए निवेशक नहीं जुड़ते हैं। जो ही नए निवेशक जुड़ना बंद होते हैं, क्योंकि नए निवेशकों का पैसा ही पुराने निवेशकों को दिया जाता है, उनके पास कोई बिजनेस मॉडल तो होता नहीं है। तो ये सारी, इसके अलावा पीएससीएल के अलावा कई है, शारदा आपने सुना होगा, रोज वैली सुना होगा, और छोटे मोटे कई सुना होगा। नोएडा में एक बाइक की स्कीम आई थी कि आप एक बाइक के लिए पैसे जमा कराइए, आपको 6,000 रुपए महीना और 9,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 50 तरह की बातें आपको मिलेगी। ये जो भी आपको बैंक डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा देता है ठीक है, लेकिन अगर आज बैंक डिपॉजिट 6 है, तो अगर कोई भी 12-13% रिटर्न और ये उससे ज्यादा रिटर्न का आपको वादा करता है, आप सजग हो जाइए, आप समझदार हो जाइए, आप उसके बारे में पूरी तहकीकात कीजिए। वो कहाँ रेगुलेटेड है, वो कहाँ रजिस्टर्ड है, उसको कौन भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट देख रहा है कि उसके डायरेक्टर्स कौन है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो आपको पैसा कहां से रिटर्न करेंगे जब तक वो कमाएंगे नहीं। ये सब बातें आप ध्यान रखिए। मैं समझता हूँ शायद मेरा समय हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैंने समय लिया, और मैं आशा करता हूं कि इस विश्वास के साथ हम इस दौर से आगे निकल जाएंगे कि हम अपना ध्यान रखेंगे, अपने पैसों का ध्यान रखेंगे, और अगले आने वाले 1-1.5 साल में कोई भी पैसा एक्स्ट्रा या लग्जरी या एक्स्ट्रावेंजा खर्च नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir, for such a great, knowledgeable, and informative session. धन्यवाद। The next session of the webinar will be taken by Dr. Ajay Sharma. So before I hand over the session to Dr. Sharma, let us have a look to their profile. Chartered Accountant Dr. Ajay Sharma is a fellow member of Institute of Chartered Accountant of India and a PhD in Commerce. He has been a rank holder in Chartered Accountancy examination. He has been into practice since 1998 with expertise on direct taxation, indirect taxation, audit reporting standards, and various other management consultancy assignments. Dr. Sharma's firm is on the panel of reputed banking institutions and CAG for various audit assignments, apart from several private sector organizations, ranging from individuals to corporate. He has also authored books ranging from financial accounting to verbal and non-verbal reasoning. He is actively engaged an adjunct and visiting professor in a number of management institutes in the NCR region, like Shobit University, IMT University, SRM University, and many more. He is also a faculty of Meerut branch of CIRC of ICAI. He did his PhD in Indian stock markets. Now he is a resource person of Ministry of Company Affairs for Investor Education.
He was awarded the Ames Ramaswamy P. Iyer Best Young Teacher and Trainer Award by Ames, an apex body of management institutions, which includes all IIMs, in its national convention at Indore in 2015. Now, I'm pleased to invite the person having such a heavy profile, Dr. Ajay Sharma, to take the session. ये सौरभ जी क्वेश्चन आंसर बाद में रखेंगे आप? Yes, sir. At the end of the session, sir. Okay, thank you. So, Dr. Ajay Sharma, am I audible to you? Dr. Ajay. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Please continue, sir. I hand over the session to you. Okay, sir. Okay. A very good afternoon to the respected Vice Chancellor of the University, Shri Naren Sharma ji, the Dean of Commerce and Management, P.K. Agarwal ji, respected keynote speaker, Shri Surkant ji, and a very good afternoon to Saurabh ji and all the participants of the webinar. Now, friends, as the topic is that how we are supposed to manage the challenges of the COVID and how we are supposed to manage our personal finance in the pre and the post COVID-19 period, I would like to be very specific in terms of the practicalities rather than on the theoretical aspects. So, as our keynote speaker has also suggested and said that things are not going to the same. Economically, socially, health-wise, or financially, nothing is going to remain the same in the post-COVID-19 period. And within 15 days itself, we have started witnessing the changes in all the situations. Economically, the governments have started facing pressure globally. Socially, all of us know we are all living in our house and we are not living the social life which we used to enjoy in the pre-COVID-19 period. And definitely, health is one of the most important criteria in our priority at this particular point of time, which used to not be in any category in the pre-COVID-19 period. We were busy with our works in so much that we were keeping health as the most tertiary aspect, which is now the primary aspect, to be very precise. Now, as our topic is centric to the finance itself, as I said, financially, neither the government is going to remain the same, nor the corporates are going to remain the same, nor you are supposed to remain the same. When the government is facing pressure financially, the corporates are facing pressure, the MSMEs are facing pressure, so obviously our incomes are being generated from either of these sources. So our personal finances can never remain the same. By personal finance, we mean our economic resources that we earn usually and how we effectively use them for the purpose of our well-being in the day-to-day basis and for the purpose of planning our financial requirements for the future. That is the requirements of our children's education, our retirement planning, etc., etc. Now, one thing is for sure, I will be delivering on some few important headings. First thing is the incomes are not going to remain the same. Even the central government within 50 days has started deducting the allowances of its government employees. Now you can very well imagine when it is not having any resources, neither direct tax nor indirect tax is being collected. How are they going to manage their resources? So definitely the biggest organization is the central government. I'm calling the word organization because it is paying it to its employees. When it is facing pressure because it doesn't have the resources to pay for the same, if this pandemic continues, the things are going to become even more precarious. I may sound a bit pessimistic. Why I'm sounding pessimistic is because 2 days back itself, WHO has said that globally what we are going to witness now is that if you try to prevent a financial pandemic, we will end up into a health pandemic. If we try to prevent a health pandemic, we will end up into a financial pandemic. Till the time there is a medicine or any other source for the purpose of treating this COVID-19, then I think these things are going to move in this way itself. When we talk of the private entrepreneurs, you can very well imagine within 1 month, the biggest corporation of ours, that is Reliance Industries Limited, has deducted 10% salaries of all its employees. So you can very well imagine the pressure of liquidity on the organizations as such. Now, when we are talking about the salaried employees, 2 examples I have just given, but the situation is even more precarious for the business people and the self-employed class, because they don't have the resources which are stable in nature. So their cash flows are even more
difficult. And let me tell you, the salaried people are definitely facing problem, but the businessmen are going to face even a greater problem, that in the ensuing days, when the business activity will resume, the business activity can never be a V-shaped activity now. It will be a long, painful U-shaped recovery. And when it will be a U-shaped recovery, one thing is for so sure, that even if incomes recover, the cash flows will not recover. Now, this is a very difficult problem for the business categories. Now, I'll come to another issue. So that thing, what I tried to emphasize in this particular issue was that incomes are going to take a hit. So when incomes are going to take a hit, definitely the disposable incomes are going to take a hit, which we use for the purpose of investment or for the purpose of our enjoyment. Now, let me tell you one very interesting aspect, that if we try to analyze the spending patterns of our three generations, that means my grandfather, my father, and me, and all the people younger than me, if they also try to analyze in these three categories itself, they will find there are lots of changes in the spending patterns. Lots of people today, they try to enjoy their life having with the leverage. That means they use credit cards for the purpose of enjoyment, etc., etc. Now, let me tell you, friends, in the times to come, these things are going to be very dangerous for you. So, a definition of saving, I'm going to give for you. There can be two criteria. That means that I have an income, I subtract my expenses from it, whatever I am left with, I can save it. This is one ideology. There is a second ideology, that if I subtract from income my savings, the amount that is left with me is supposed to be used for the purpose of meeting my day-to-day expenses. I think this would be a good strategy for the time being for you people to generate a disposable income, because our forefathers, our father, our grandfather, they used to save a lot, and they used to, even if they used to take leverage, they used to take it only for the purpose of asset creation, not for the purpose of personal enjoyment, like going for a world tour or something like that. They could have also done the same, right? They could have used their savings or loans for the purpose of going abroad, but they didn't use it for the particular purpose. They used it, even if they took a loan, you took it for the purpose of making a house, which was an appreciable asset. They used to avoid even investing in cars or things like that, because they were supposed to be depreciable assets. So the patterns of your consumption are supposed to change if you want to learn something from this particular environment. Because one thing is for so sure, for some of the people, the incomes are reducing. For some other people, even the income is even over. Yesterday itself, I read a news that 13% of employees have been retrenched by Zomato, and 50% income has been reduced for the rest of the categories. Now, this is a very dangerous trend, that when all the organizations are reducing their salaries, then definitely the disposable incomes are going to be less. Even some people who are highly leveraged मतलब जिन्होंने लोन ले रखा है, उनको तो ये भी प्रॉब्लम होने वाला है कि उनके लोन की इंस्टॉलमेंट टाइमली कैसे जाएगी. So first and foremost thing that I would like to say is that be, as far as possible, try to be deleveraged. So don't use the debt funds for any of the purposes. So try to deleverage first. Then obviously, what I said, that income minus the savings should be your expenditure. So that savings that you're trying to derive should be suitably invested, so that they generate for you a secondary source of income. For all of us who are sitting here, if we are not government employees, we are not going to receive the pension. So if you are not in the receipt of the pension, that definitely it means that we have to save our money for the purpose of our future needs also, for the purpose of our children education, etc., etc. So the point is, proper savings have to be our constant endeavor in the times to come, to reduce your expenditure and try to save as much as possible. Now, saving in itself is not sufficient, as our respected speaker has said. Savings have to be properly invested as well. Now, there is a very simple dilemma that everybody understands, and that dilemma is कि अगर मुझे सेविंग करनी है तो मेरा पैसा दुगना कितने दिन में होता है. तो दुगना कितने दिन में होता है, तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला यूज होता है, that 72 divided by the rate of interest is the amount period that is required to double your money. Now, as sir has said कि AFD में 6% का ब्याज मिल रहा है, तो 72 divided by 6 means 12 years it will take to double your money. So you can very well imagine, if you invest in FDRs, will you be able to justify your needs in the future? I don't feel so. Even 6% is not the real return. For sir, it may be 6%. For me, it is 5.7%, because I am of the age of less than 60. So sir might be
more than 60, so he might be enjoying a rate of interest of 6%. So all of us are here, most of them are less than 60. So you are not even having a rate of return of 6% to be very precise. Now, so to generate wealth, definitely we need to do something for properly investing. And proper investing requires two things, that you have a good capital appreciation and you also have good cash flow as well. So we'll need to look at the asset classes from these two parameters कि कौन कौन सी wealth create कर सकती है और कौन कौन सी हमें cash flow दे सकती है. तो सर एक बड़े पार्टिसिपेंट एक बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि कंपाउंडिंग आप किस रेट से कर रहे हैं उससे आपकी वेल्थ जनरेट होती है. So if you try to do a compounding at the rate of 6%, which was the FD rate, आपके 5 लाख रुपए 20 साल में 16 लाख रुपए बनेंगे. वही पैसा अगर आप 7% पे लगाते हैं 20 साल के लिए तो वो हो जाते हैं आपके 19 लाख. और वही पैसा अगर आपको कंपाउंडेडली 15% का रिटर्न दे रहा है तो दैट बिकम्स 81 lakhs. So you can very well imagine the power of compounding. Now, in order to achieve a good compounded rate of return, we need to invest in a good portfolio in the different asset classes that are available to us. I don't have the time to discuss all the asset classes, but I would like to quote my views on a few of the asset classes for the times to come in the post-COVID-19 period. Friends, हम दो asset classes जिनको हम financial instruments कहते हैं उनको दो broad categories में काट देते हैं, and they are the fixed income securities and the variable income securities. Right? I'll come to these two issues at a later point of time. But three instruments which all of us know: real estate, gold, and insurance. देखिए एक चीज तो one thing is for sure, whosoever is insured sitting over here, he need to take a good insurance cover in the form of a term plan and nothing more than that because a term plan is sufficient enough for the purpose of insurance. Because what I perceive is insurance is an asset class which should only be used for the purpose of insurance, not for the purpose of investment. So take a good quantum of your term plan so that your family is not left to the vagaries of the nature if something mishappens to you. Number thing, then nothing more than this I would like to discuss about insurance. Now, second category is a good lot of people sitting over here would be having a fancy towards the real estate. I do have friends who have a fancy for real estate. I don't have it, right? So the real estate can be classified under two broad categories, and what they are, that is the commercial real estate and the residential real estate. Now, friends, as we are sitting over here, 120 people I am seeing are just logged into the webinar. Now, I would like to just to say that we could have been sitting somewhere in the seminar also 120 people wasting a lots of capital expenditure of the organization where we are. We would have been doing this seminar. Now, just imagine what a good lot of people, good lot of organizations can do now is that they can work online. Then when they will be working online, one thing is for sure that the quantum of the requirement for the commercial real estate is not going to remain the same. I have just read a newspaper article yesterday. Domino's has taken 30% discount from all its vendors who have given, or rather, I will not call it them vendors, the landlords who have given it on rent. So a good lot of people will now be renegotiating in terms of the rentals they are supposed to pay because they are facing a lot of pressure in the financial world. So the returns from the real estate are not going to be the same. So when you are not going to get the real estate returns in terms of the rentals, then definitely nobody would like to invest. Because एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि rentals का जो ROI है वो 2 से 3% ज्यादा नहीं निकलता है. अगर आप एक फ्लैट की भी कॉस्ट को समझ के देखें, that if a flat is costing 50 lakh rupees, what price it is available to you on rent, maximum at the rate of 15,000 or 20,000. So that is a net yield of 3 to 4%. Would you like to invest in a commercial real estate or a residential real estate? My answer would be no. Maybe you will like to do the same because my mathematics will go this way. If a flat is costing 50 lakh rupees, even invested at the rate of 6%, the interest income would be 30,000 rupees per month. Oh, sorry, 25,000 rupees per month. 3 lakh rupees. So out of the 25,000 rupees, I would like to pay 15,000 as rent to the person who has got this property, and he is increasing his cost of that property by paying the housing loan interest. क्योंकि अगर आपने 50 लाख का कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है या 40 लाख का हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो interest that you pay for the property is actually adding to the capital cost of the property. So I am not going to witness, I feel is we are not going to witness any real change in terms of the property prices because of a variety of other taxation issues also, which I cannot highlight at this particular point of time. So
two aspects I have told you. The third is gold, which sir has also discussed. I have read a few articles of Jim Rogers, who is the biggest commodity group, and a few other commodity experts also. They have suggested that the price of the gold is likely to appreciate to $2,000 to $3,000 per ounce in terms of the dollar terms. Right now, it is $1,700 per ounce, and the Indian price substituted for it comes out to 47,000 rupees. So you can very well imagine if it appreciates to a level of 2,000 or 3,000 for that matter, what would be the price of the gold? And gold is definitely going to be one of the best asset classes, one of the best asset classes, I'm not saying. And there is a reason behind it. One thing is the quantum of gold available globally is limited. Number two, there is a fight going on between America and China. Number three, there are a lot of financial packages being announced by the different governments. Only if we take the package of US, it is $3 trillion. Now you can very well imagine when this quantum of money, excess money will flow into the system, it is going to chase some business activity. Now the real business activity is not going to take uptick in the near future. So where will this money will go? This money will go ultimately into speculation. And for speculative purposes, the equity markets and gold are the best bet. So this money will sometimes flow into the equity market, sometimes it will flow into the gold markets. So definitely the prices of gold will increase. This is another reason. And one of the foremost reason is when the dollar is going to depreciate, when there is going to be a unfaith on all the currencies globally, then definitely the central bankers will also like to increase their stake in terms of gold, in terms of their reserves. So when the central bankers, they will buy, definitely the gold is going to appreciate. So this is going to be one of the good asset classes you can add to it. What I say is nearly 15% of your total investment should always be into gold. That is my perception, please. I can answer to your queries. 15% of your overall portfolio should always comprise of gold. Right. Now coming back to the other two issues, that is the fixed income securities and the variable income securities. Fixed income securities, as sir said, FD है, आप डेट मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केबीपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पीपीएफ में लगा सकते हैं, सुकन्या में लगा सकते हैं. तो डेफिनेटली all these are yielding you any return between 6 to 7% now. And if you subtract the tax rates, अगर आप 30% के टैक्स लेब में हैं तो 7 में से 30% घटा देंगे तो 2.1 चला गया, तो आपका रियल रिटर्न 5% आ रहा है, तो वो तो इन्फ्लेशन को भी पूरा नहीं करेगा. एंड लेट मी टेल यू, इन द टाइम्स टू कम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज. अभी कोई बहुत नियर फ्यूचर में तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से मिलने वाला है. सो द पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ऑफ दीज आर नॉट गोइंग टू बी रियली वेरी गुड. Now, when it comes to the last asset class that is referred as the variable income security, जिसमें सर ने डिस्कस किया कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स आते हैं. तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैरामीटर आता है कि इक्विटी, बहुत सारे लोग जहां बैठे होंगे सर मेरे बात को अप्रिशिएट करेंगे कि इवन आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माय फादर itself. My father was a professor and my grandfather was a clerk in the कचहरी. तो टू बी वेरी प्रिसाइज, हमारे यहाँ भी जनरेशन से ये बताया जाता था दैट इक्विटी इज एसेट क्लास, इक्विटी इज एसेट क्लास विच इज स्पेकुलेशन. तो क्या है इक्विटी? इक्विटी एक जुआ है. तो जुआ खेलना है या नहीं खेलना है? तो जुआ नहीं खेलना है. नाउ लेट अस टेल यू वन थिंग. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द पोस्ट कोविड-19 एटमॉस्फेयर इटसेल्फ and you want to invest in the post COVID-19 atmosphere for the purpose of future requirements, let me tell you, there has been no person on this earth who has ever been able to generate wealth without investing in equities. इक्विटी में इन्वेस्ट करे बगैर आप वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते. दैट इज फॉर सो श्योर. दैट्स फॉर सो श्योर. आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल. 6% की एफडी से आपका पैसा 12 साल में दुगना होगा. वो 6% भी रिटर्न आपको रियली नहीं मिल रहा है, तो आपका 12 साल में पैसा दुगना होगा. इसका मतलब 2 बार दुगना होने में 1 के 2 होंगे और 2 के 4 होने में आपके बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपके सामने खड़ी होंगी. तो यू विल नॉट बी एबल टू मीट आउट योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दिस वे. So there has been a globally accepted formula for this, and that is कि अगर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ जनरेट करनी है और कैश फ्लो जनरेट करने हैं, तो आई एम कोटिंग यू प्लीज, इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला. 100 minus your age, 100 minus your age should be your equity exposure. आपको अगर आपकी एज 25 साल है तो आपका 75% पैसा वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, दैट मींस इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए. अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, वेल्थ नहीं क्रिएट करनी है, तो दैट इज योर अल्टरनेटिव. बट इन केस
you want to create wealth for so sure, then definitely you need to have this much of your money invested in the variable income securities. Now comes the next question कि हर आदमी को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है. Definitely everybody is not as competent as me and as sir to identify where to invest and where not to invest. Now one thing is for so sure कि मेरे को तो बैलेंस शीट पढ़नी आती है, मुझे 25 साल हो गए बैलेंस शीट पढ़ते पढ़ते, so I can understand which of the organizations are fancy and which of the organizations are really doing business and which will like to appreciate. Even we tend to suffer because our analysis can also be wrong at times. So all of those of you who don't have financial knowledge, they can take a route for this through a passive route, that is the concept of mutual funds. So one thing you can very easily do is that you can identify a good lot of mutual funds if you want to be a passive investor who have given a good performance. As sir has said, 3 types of mutual fund would be good enough. You can take a large cap, a good mid cap, and a small cap. And dependent upon the disposable income available with you, you can keep on investing a good portion, a small portion can even you can invest. अगर आपके पास 500 रुपए भी हैं महीना के, तो आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. So start investing, because when this problem of compounding will start, you will achieve a lot. जैसे सर कह रहे थे अभी, let me tell you a good interesting thing कि हमारे निफ्टी और सेंसेक्स के अगर रिटर्न्स को हम डिकेड पर कंपेयर करें, तो डिकेड पर उनका रिटर्न एवरेज बेसिस पर करीब 15% के आसपास आता है. So you can very well imagine if you can remain invested for a period of 10 years in good equities and good equity mutual funds, 15% नहीं कहते तो 12% कंपाउंडिंग तो आप अचीव कर ही सकते हैं. अगर आपने 15% कंपाउंडिंग अचीव कर ली, तो आई जस्ट सेड कि 5 लाख रुपए 20 साल में आपके 81 लाख रुपए हो जाते हैं. नाउ this is from one side. Which side? That is the passive investment. So you can go on a number of websites available. You can see the rankings of the mutual fund. You can select any 3 mutual from these fund categories. But I said, जैसे बच्चे को बड़ा होता देखते हैं कि वो छोटा होता है तो वो बड़ा धीरे धीरे होता है, आप उसके पैर खींच के तो बड़ा नहीं करते. अगर आपके पास इतना पेशेंस है कि आप उस बच्चे को जो इक्विटी है उससे पैसे को इन्वेस्ट करके 20 साल नहीं देखेंगे, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके डेली नहीं देखेंगे कि कल ये ऊपर था आज नीचे है, तभी आप कुछ बना सकते हैं. अदरवाइज प्लीज दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर यू. आप अपने बच्चे को कहीं से बांध कर रबड़ से खींचकर पैर से खींच कर उसे बड़ा नहीं कर सकते. उसे जितना समय चाहिए बड़ा होने के लिए उतना लगेगा. तो प्लीज go with this philosophy if you want to invest in the equity and equity related instrument. I'll give you one very simple example. अब मैंने अब आपको एक पैसिव एग्जांपल दिया, और मैं अब आपको एक एक्टिव एग्जांपल देता हूं जो हम यूज करते हैं. That means who invest directly into the equities rather than mutual funds. Now State Bank of India 3 months back was around at 373 rupees. Just listen it once again please. State Bank of India का शेयर 3 महीने पहले 373 रुपए का हाई लगा चुका है. State Bank of India is now available to you at 165 rupees. Right sir? अब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट पढ़ने नहीं आने चाहिए, आपको कुछ नहीं किसी चीज की जरूरत है. मेरे जो 2-3 लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप उन्हें एनालाइज करके देखिएगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है. नंबर 1, ऑल ऑफ अस विल एग्री. नंबर 2, हमारे यहाँ कैश ट्रांजेक्शन्स को डिस्करेज किया जा रहा है, और ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स आज की तारीख में हम अपने घर बैठे भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर रहे हैं. पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग. थर्ड थिंग, India is definitely one of the most promising economies globally. So as our Prime Minister having a vision that it is going to go from $2 trillion to $5 trillion, I may not agree with him in terms of the time horizon. He said it will happen in the next 5 years. It might happen in the 8 years. It might happen in 9 years. But my question to you people is, it will definitely happen. So when this is going to happen, that an economy is going to nearly triple. अगर आप ट्रिपल भी नहीं करना चाह रहे हैं तो 2.5 टाइम्स कर लीजिए. राइट? तो अगर वो 2.5 टाइम्स होगी और सारा जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट होगी, तो जब बैंकिंग चैनल के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस आपकी रूट होंगी, तो डेफिनेटली एक बात तो पक्की है, दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स इज गोइंग टू बी द best beneficial part in this part. I'll quote you the positive aspects also, I'll quote you the negative aspects also. This is the positive aspect that I'm showing you regarding the banking profitability, that when the transactions will move through the banking channel, definitely the profitability will increase. Now another question comes, that definitely something bad about the banks is also going to happen. And one thing all of you will be having in your mind, okay, a lots of loans are going to become bad in the days to come.
बिकॉज ऑफ कंपल्शन, हो सकता है बहुत से लोग जो है जानबूझ करना चाह रहे हो, बट आउट ऑफ कंपल्शन दे मे बी फोर्स टू नॉट टू रिपे देयर लोन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अभी मैंने आपसे एक फिगर बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 373 से गिरकर 165 आ गया. सर, इक्विटी मार्केट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मार्केट वेयर इन वी डिस्काउंट द फ्यूचर इंफॉर्मेशन. तो ये 373 से 165 आया ही इसलिए है क्योंकि मार्केट ने एंटिसिपेट कर लिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने एनपीए बढ़ेंगे, जिसका इफेक्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या होगा और उस प्रॉफिटेबिलिटी का इफेक्ट उसके प्राइस पर क्या होगा. तो वी हैव discounted a good lot of the information already in the price of the State Bank of India. I'm not saying that it cannot go below 165 rupees. It might go below even 165 rupees. But the bet is, it is really a good, interesting price, because I'll quote you another example for it. There are two issues. One is the price and the other thing is the value. I use this raw example everywhere. In my corporate clients as well as to the students to whom I teach in management institutions. And that example is very interesting. कि आपने सेम मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है और आपके पास नॉलेज है, एक दूसरा आदमी है जिसके पास डिग्री तो है पर उसके पास नॉलेज नहीं है. किसी ना किसी कारण अगर इंस्टीट्यूट उस नॉन नॉलेज वाले को अगर अच्छी डिग्री दिला भी पाया, मान लीजिए उसे 8 लाख रुपए की 10 लाख रुपए का पैकेज मिल गया, खराब जो अच्छा स्टूडेंट था उसको पैकेज 5 लाख रुपए का मिला. वन थिंग इज फॉर सो श्योर, जिसको नॉलेज थी और उसे कम का पैकेज मिला था वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, और जिसकी नॉलेज नहीं थी और उसे गलती से ऊपर का पैकेज मिल गया था वो ऊपर से नीचे को चलेगा. एंड नाउ व्हाट आई कॉल दिस डिलेमा इज प्राइस एंड वैल्यू डिलेमा, बिकॉज in the stock market we call price is what we pay and value is what we get. So at 165, definitely the price I am paying for SBI is 165. The value according to me what you are getting is definitely more than 165. So definitely at this particular point of time this is a very, very good bet. So what I said is that is not a rocket science for the purpose of investing. You need to be logical to identify the areas where we can invest. Now, let me tell you another example. Mr. Jhunjhunwala, Rakesh Jhunjhunwala, who is supposed to be said to be the Warren Buffett of this country, right? He started investing with 2 lakh rupees and he has a portfolio today of more than 12,000 crore rupees. 12,000 crore rupees, I am citing it once again. And how he started was, he started with the Tanishq stock. आप लोगों में सब लोग ज्वेलरी लेने में तो इंटरेस्टेड होते हैं. जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नगद में ज्वेलरी नहीं खरीदी जा सकती और आपको तो जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो अगर मुझे एक लोकल ज्वेलर को जीएसटी भी देना है और नगद पैसा भी नहीं लेगा वो, तो मैं जाकर फिर तनिष्क से ही ज्वेलरी क्यों नहीं परचेज करूंगा. तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने एक बड़ी सिंपल सी एनालिसिस करी. ही सेड दैट द millennials are going to comprise a very good population of this country. Millennials, I think all of us are aware of this term. 80s के बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो एक sizable population को comprise करते हैं जो हमारे country की है. That's why we are called as a young country. So when we are a young country, our consumption patterns are supposed to be different. So he said कि मैंने तनिष्क में इन्वेस्ट इसलिए किया कि जब एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और पैसा बढ़ेगा. सो ही बॉट इट एट 13 रुपीज टू बी वेरी प्रिसाइज. द स्टॉक हैज ट्रेडेड एट मैक्सिमम ऑफ 1300 रुपीज. 13 रुपए का शेयर 1300 रुपए का हो चुका है. आई कैन कीप ऑन कोटिंग यू एग्जांपल्स लाइक दिस. आप लोगों में से बहुत से लोग डोमिनोज पिज्जा खरीदते होंगे, लेकिन वो डोमिनोज की कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदते होंगे. आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज बैठी होंगी. दिस एग्जांपल आई यूज ऑलवेज, that a friend of mine is there who is actually a territory sales in charge in Hindustan Unilever Limited. वो मुझे एक बार बता रहा था कि मेरठ शहर में 2 ट्रक लोड फेयर एंड लवली एक हफ्ते में कंज्यूम हो जाती है. तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कितनी फेयर एंड लवली पूरे हिंदुस्तान में कंज्यूम होती होगी, फेयर एंड लवली की कॉस्ट क्या है और फेयर एंड लवली का रेवेन्यू हिंदुस्तान यूनिलीवर को कितना है. तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोमोटर्स ने अपना जो स्टेक है अपनी कंपनी में मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा रखा है. तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि उनका अपनी ही कंपनी में कितना बड़ा विश्वास मौजूद है. तो यू कैन यूज वेरी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ दिस नेचर टू आइडेंटिफाई यू वांट टू डू अ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. बट लेट मी टेल यू वंस अगेन, आई एम कमिंग टू द पॉइंट वंस अगेन, कि इक्विटी इन्वेस्टिंग सिर्फ उसके लिए है जो नीचे देखने के लिए तैयार है और टाइम देने के लिए तैयार है. अगर आप सोचते हो कि 3 दिन में पैसा दुगना होगा, 3 महीने में होगा, प्लीज रिमेन अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मार्केट. दिस इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ
you. Now the question arises कि definitely if you want to have a long term horizon, और दूसरा important thing, आप किसी doomsday philosophy के believer नहीं है. अगर आपको लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है तो प्लीज FD is the best bet. Don't go for anything else, right? But if you are not a believer of the doomsday philosophy, कि दुनिया चली है, ऐसे ही चलती आई है, हम होंगे नहीं होंगे, definitely equity and equity related instruments are going to be the best bet. As sir has just right now said that the equity markets have corrected from their top to about 30%. It is the average from the top that has corrected. If you look at a few stocks, they have corrected even more than that, about 50% or more than the same. अभी जैसे आप लोग FD के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, these are the examples I am giving. Please study on your own, discuss with your financial consultant. I am quoting a few examples. Coal India Limited, ONGC, GAIL. There are lots of public sector undertakings जिनका dividend payout ratio जो है, उससे अगर आप dividend yield भी निकालेंगे तो वो FD के रेट से कहीं गुना ज्यादा आ रही है, 10% से ज्यादा dividend yield आ रही है. That means आपको capital appreciation भी मिल रहा है और आपको annual cash flow भी मिल रहा है FD से ज्यादा, if you invest in the equities at this particular point of time. So an asset class, if you want to invest prudently at this particular point of time, is definitely the variable income security, that is the equity and equity related instruments. Now you have to be clear about the fear and greed meter in here. And what do I mean by the term fear and greed? When everybody is fearful, this is the time for the purpose of investing. When everybody is greedy, this is the time to come out of it. So एक प्रॉब्लम ये होती है कि बाजार का टॉप या बॉटम बन गया है या नहीं. तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जब एक सिंपल फार्मूला लगा के देखिएगा, जब मार्केट चलना शुरू होता है तो सबसे पहले लार्ज कैप चलते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं और फिर सबसे बाद में स्मॉल कैप चलते हैं. तो इसका मतलब जब मार्केट चलना शुरू करेगा तो सबसे पहले HDFC, ICICI और SBI चलेंगे. जब मार्केट बीच में पहुंचेगा तो फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB चलता हुआ मिलेगा. और जब आपको पता चले कि यूको बैंक भी चलने लगा है ऊपर को, तो बस समझ जाइएगा बाजार का पीक आ गया है और उसको नमस्ते करने का टाइम आ गया है. और जब गिरना शुरू होते हैं तो सबसे पहले यूको बैंक गिरेगा, फिर पंजाब नेशनल बैंक और BOB गिरेंगे और सबसे आखिर में आपके HDFC, ICICI और SBI गिरेंगे. तो जब आपको दिखाई दे कि SBI, HDFC एंड ICICI have started taking a beating which is more than warranted, उनकी इतनी पिटाई हो रही है जितनी जरूरत से ज्यादा है, that is the time for the purpose of investing. And definitely my dear friends, that time has nearly come. I'm not saying it has exactly come, but it has nearly come. So you can keep on buying staggeredly if you want to create a good portfolio at this particular level. I can definitely tell you, if you invest prudently at this particular point of time, these are going to prove for you the best investments that you have made in your lifetime. So this is the part that I said. Now there are certain small changes required in your consumption patterns. What I'll say is, बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलेनियल्स बैठे होंगे, वो क्या करते हैं, वो उनके कंजम्पशन पैटर्न से मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, आप सेटिस्फाई जो मेरे से भी ऊपर की एज के हैं सेटिस्फाई है नहीं है, और उनके कंजम्पशन पैटर्न कैसे हैं कि वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर 5,000 रुपए खर्च कर देते हैं. They can buy a piece of 500 rupees without any hesitation, but a lot of people they think. Now let me tell these people, especially the millennial class, that when they are sitting in their home, and they are not buying articles of this nature, today a mid-sized pizza which usually used to cost 170 rupees or 180 rupees, you can buy a SBI today for that. तो जितना पिज्जा नहीं खा रहे, कम से कम उतना ही ऐड करना शुरू कर दें. A small size pizza which used to cost you around 90 rupees, Gas Authority of India, GAIL, then Tata Motors, a good lot of very good quality stocks are available to you at a price of 90 rupees. So don't buy a burger or a small size pizza, buy one Tata Motors if you want to secure yourself financially for the future, right? I'm not saying continue to discourage your expenses, but till the time we are having a pressure on our finances and we want to save ourselves, that in the times to come, अगर ऐसा कोई बुरा टाइम दोबारा आता है, मान लीजिए मेरी नौकरी चली जाती है या मेरी तनख्वाह कट जाती है, तो मुझे लोन ना लेना पड़े, मेरे अपने पर्सनल फाइनेंसेस इतने सफिशिएंट इनफ हो कि मेरे लिए वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकें. तो लास्टली व्हाट आई लाइक टू समराइज इज कि अगर आपके पास उधार है तो सबसे पहला काम तो ट्राई टू डिलीवरेज योरसेल्फ, दैट इज द नीड ऑफ द आवर. एक चीज याद रखिएगा, कोई भी वो कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा इस समय
जो कंपनी उधार लिए बैठी है वो डूबेगी ही डूबेगी, या फिर वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी जितना कि कोई एक अनलीवरेज कंपनी आपको दे सकती है। तो कंपनी सिटिंग ऑन कैश और हैविंग डीलीवरेज, there are lots of examples of it. Hindustan Unilever is there, Maruti is there, Reliance Industries is trying to become one of those companies which is deleveraging itself. So you can have the examples of the same for the purpose of investing. और फिर अगर आपको इच्छा नहीं है तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज ट्राई टू डीलीवरेज योरसेल्फ। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा लोन है जो कोई एप्रिशिएबल एसेट का नहीं है, कंजम्पशन का है, फॉरेन ट्रेवल का है, तो मेरा पहला सजेशन ये होगा कि उस लोन से अपने को निजात दिलाइए। नंबर 2, ट्राई टू इंक्रीज योर डिस्पोजेबल इनकम। अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को इस तरह से बदलाव कीजिए कि आप इन्वेस्ट ज्यादा करें और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को प्रिवेंट करें, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करें, वेल्थ क्रिएट करें और अपने लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। Thank you, sir. Thanks a lot for such an interesting and informative session. I truly hope that both the sessions were informative and at the same time were full of learning for all of you. The comment section is open for all the participants to ask the questions related to the webinar. Participants can simply drop their queries in the comment section and our speakers will provide you the answers. So let's go through the comment section. सर साहब आप कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। Sure, sir. Sir, there is a question from Sarika Garg. Her question is, apart from gold, what about silver as an investment option? देखिए मैं कमोडिटी मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको ऐसी कई राय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, सिल्वर थोड़ा चला है, थोड़े चली है अभी, लेकिन जैसा मेरे छोटे भाई अभी शर्मा जी बता रहे थे कि गोल्ड ही ज्यादा चला है और गोल्ड के ही ज्यादा चांस है। जो सिल्वर का बीच में थोड़ा मूवमेंट आया था, लेकिन इतना मूवमेंट अभी नहीं आया है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बारे में। Okay, thanks, sir. I can answer this query a bit more. Sure, sir. Sure, sir. The point is, the gold has a demand for investment nature, and silver demand is also for the purpose of consumption nature, because silver is also used in manufacturing activity. तो जब तक जो है इकोनॉमीज अपटेक नहीं करती हैं, दोबारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छे से अपटेक नहीं करती, चांदी रिकवर नहीं करेगी जितना जल्दी गोल्ड रिकवर करेगा। Okay, fine, sir. There's a next question from Rajpal Rawat, and his question is, what about SBI equity mutual funds? अब ये किसी व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड के बारे में और उसकी किसी व्यक्तिगत स्कीम के बारे में बोलना शायद मेरे लिए उचित नहीं होगा। वैसे भी मैं सेबी में रहा हूँ और अभी भी जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो सारे म्यूचुअल फंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनकी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। आप परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ए गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ने और उनकी स्कीम्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। जैसा अभी शर्मा साहब बोल रहे थे कि मेरे अपनी व्यक्तिगत राय है कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो फाइनेंस के नहीं है, जैसे शर्मा साहब चार्ट अकाउंटेंट हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह हैं, उन व्यक्तियों को अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर साथ में रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप 10 करोड़ की एसेट हो जो भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर रखेंगे। आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उस एडवाइजर को आप अपना एक सिटिंग दीजिए, 2 सिटिंग दीजिए, उससे बात कीजिए, अपना विजन समझाइए, आपकी जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण बताइए, आपके सोशल स्टेटस बताइए, आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां बताइए। जब वो आपको पूरा समझ लेगा फिर आपको वो सही राय दे पाएगा। इसलिए कोई मतलब इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। Okay, fine, sir. And next question is from Shrikant Maharana, and he's asking about ELSS fund, sir. ELSS फंड में जैसा आपको सबको पता है, इसमें टैक्स रिबेट मिलती है। Okay, sir. मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो 1.5 लाख के ब्रैकेट में जो सेविंग करना चाहते हैं, पीपीएफ थोड़ा कम है उनका, ईपीएफ कम है थोड़ा उनका, और जो टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए है। ये 3 साल का इसमें लोकन पीरियड होता है। लेकिन अब आप जैसे डायरेक्ट कोड में हम जा रहे हैं
और सारी रिबेट स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी खत्म हो रहे हैं, या ऑप्शन है, अभी ऑप्शन दिया है, हो सकता है फ्यूचर में स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म हो जाए तो ईएलएस में शायद इतना अट्रैक्शन ना रहे, शायद। Okay, okay, thanks, sir. There's a next question from Dr. Brijesh Kumar classes, and he want to know details on government bank gold bond certificate to avoid keep physical gold in home for safety purpose. देखिए, वैसे भी मैं व्यक्तिगत राय ये रखता हूँ कि फिजिकली गोल्ड रखना आज के समय में शायद समझदारी नहीं है। आपके जितने भी, अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, आप कर रहे हैं गोल्ड में, आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है गोल्ड में, उसमें स्कीम कीजिए, उसमें रिटर्न अच्छी आती है, आपको फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको किसी समय गोल्ड की आवश्यकता पड़ती है फिजिकली, तो आप नेचुरली अपना रिडीम करवा सकते हैं, उससे गोल्ड ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन मैं समझता हूँ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में जो स्कीम्स है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। Okay, thank you. And there's a next और मैं question कभी from भी, मैं दूसरा एक और निवेदन कर दूं सबको, ही जनरल बात आ गई है, मैं कभी भी स्पेकुलेशन में विश्वास नहीं करता, न किसी को राय देता हूँ। आप हम साधारण लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं। बिजनेसमैनों की सोच अलग होती है। हम तो हमारा सोच ये होना चाहिए कि जो भी मैं पैसा बचाऊं वो मेरे फ्यूचर में मेरे काम आए, समय पर काम आए, पैसे में अच्छा रिटर्न मिले, और जो मेरी सामाजिक दायित्व है वो समय पे उन पैसों से पूरा कर सकूं। ये एक साधारण बात कर रहा हूं मैं। Okay, thank you. And can I take the next question, sir? हाँ, प्लीज। The next question means from Dikshita Thakkar, and just please suggest some large capital equity funds to invest right now. निश्चिता, मेरे लिए कम से कम पब्लिक सेशन में किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या उसी स्कीम को रिकमेंड करना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप तो पढ़े लिखे हैं, जब आप, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप वेबसाइट्स पे जाइए, आप कंपैरिजन कीजिए, आप देखिए, बहुत अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसा भी शर्मा साहब भी कह रहे थे, आने वाला टाइम, मैं दोबारा बोलने वाला हूँ, हमारे जैसी नौकरी पेशा के लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जितना पैसा 5 रुपए से लेके, वो 500 रुपए से लेके आप 5 लाख तक उसमें डाल सकते हैं पर मंथ। एक सिस्टम आपने बनाइए, उसको हर साल अगर आपकी तनख्वाह बढ़ती है, इंक्रीमेंट मिलता है, SIP बढ़ाते रहिए। अगर आपको बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, या कोई एडिशनल बेनिफिट मिलता है, उसका एक बड़ा पोर्शन म्यूचुअल फंड में डालते रहिए। ये करना बहुत जरूरी है। और जैसा शर्मा साहब ने जोड़ दिया, एक्चुअली मैं इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने साधारण बात की सारी। कंपाउंडिंग से बड़ा कोई हमारे फाइनेंशियल मार्केट में कंपाउंडिंग बड़ा कोई मिरेकल नहीं है। इट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे पास मेरी पूरी स्लाइड्स है, जब हम फिजिकली आइए पिच करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो मैं पूरा उन्हें वही समझाता हूँ, वो सारा बात। लेकिन क्योंकि यहाँ वो मुझे लगा कि शायद साधारण बात करना इस समय में ज्यादा उपयुक्त होगा, इसलिए मैंने साधारण बात ही की है। कोई भी मैंने टेक्निकल किसी एस्पेक्ट को टच नहीं किया है। लेकिन हाँ, 2-3 बातें जरूर है। कंपाउंडिंग से बड़ा कोई कुछ नहीं है, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है जब आप लंबे समय तक लगातार निवेश करते हैं और लंबे समय तक निवेश में बने रहते हैं। ये 2 कंपाउंडिंग की प्री कंडीशन है, फिर आपको फायदा ही फायदा है। Okay. And next question is, next question from Sunny, and he's asking, is it right time to invest in security market? Absolutely, लेकिन वही कंडीशन है, मैंने 2 पहले बात बोली थी, अपने 1 साल का घर खर्च अलग कर लीजिए। अगर कोई आपके अगले 2 साल 1 साल में कोई सोशल कमिटमेंट है, कोई जिम्मेदारी है, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है, वो उसके लिए पैसा अलग कर लीजिए। बाकी पैसा, जिसे साधारण भाषा में हम सरप्लस भी कह सकते हैं, ऐसा पैसा जो आपको 3 से 5 साल के लिए नहीं चाहिए, उस पैसे को आप निश्चित तौर पर, मेरे व्यक्तिगत
राय में मैं रखता हूँ, कन्विक्शन रखता हूँ, और मैं मेरे परिवार में भी करता हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उस पैसे को जरूर आप सिक्योरिटी मार्केट में लगाइए। और उनमें भी मैं आपको निवेदन करूंगा, अगर आपका समय नहीं है, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। लेकिन दोबारा रिपीट करूंगा, मिनिमम 3 से 5 साल का होराइजन आपके पास होना चाहिए, ऐसा पैसा जो आपको अगले 3 से 5 साल नहीं चाहिए। हाँ जी, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत जरूरी है ये तो। बार बार बिगर पेशेंस हो तो जैसे कोई भी प्लांट हम लगाते हैं एक दिन में थोड़ी उग जाता है, बिल्कुल सही। तो स्वाभाविक है। पेशेंस रखिए और साथ साथ इन्वेस्ट लगातार करते रहिए, एक दिन नहीं, लगातार करते रहिए। और मैं दूसरी बात भी छोटी कहता हूँ, जैसा मैंने पहले बोला, अभी अपने SIP को हर साल बढ़ाते रहिए। नॉर्म ये कहता है कि कम से कम 10% आपको इंक्रीमेंट भी लगता होगा, तो SIP को, अगर आपकी SIP अभी 5,000 की है महीने की, अगले साल उसको 5,500 की कर दीजिए। Okay, thank you. Sir, next question is from Abhishek Sharma, और he is asking what will be the future of PSU sector? देखिए, आगे आने वाले टाइम में, अब मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी शर्मा साहब भी, मैं चाहूंगा शर्मा साहब भी अपनी राय कहें इसमें, जितनी मेरी समझ है, देश की मेजोरिटी ऑफ PSUज, क्योंकि भारत सरकार की नीति रही है कि PSUज को इन्होंने बहुत इंडिपेंडेंस दी है। उनके लिए पहले बड़ा कंट्रोल था, भारत सरकार ने हर चीज, इवन बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट सारे गवर्नमेंट करती थी, उनकी पॉलिसी गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती थी। अब बहुत चेंज आया है, तो PSU होराइजन मुझे लगता है अगले आने वाले 5 से 10 साल में बहुत ब्राइट है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और आप PSU के जो मतलब उनके शेयर्स हैं, जो रेपुटेड PSUज हैं, जिसे हम नवरत्न PSUज बोलते हैं, उन PSUज में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम से जो PSU में इन्वेस्ट करती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शर्मा साहब कुछ ऐड करना चाहें? हाँ बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। महारत्नाज और नवरत्नाज में आप बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न रहेगा। Shall I continue, sir? हाँ प्लीज। There's a question from Jafar Siddiqui, or he's asking, sir, your session was exemplary, is appreciating that. Which one has the option of yielding high revenue, mutual funds or FD? As I wanted to invest something for daughter, she is 8 now, kindly advise. FD, अब मैं ये आपको शायद बात कड़वी लगे, शायद शर्मा साहब मेरे से इत्तेफाक भी रखेंगे। FD धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की परिधि से बाहर हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट रहेगा ही नहीं। अब उसके 2 कारण है, एक तो FD की रेट्स कम हो रही है और कम हो रही है आगे। दूसरी बात, FD के साथ 2 कंपोनेंट और जुड़े हुए, जिन्हें सबके साथ जुड़े हुए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आपका, मैंने जैसे एग्जांपल भी दिया था, अगर आपकी 5 लाख की FD है, 6% आपको ब्याज मिलता है, तो आपको 30,000 रुपए आपको एक तरह से इंटरेस्ट मिला 1 साल का। आपके अकाउंट में 30,000 रुपए आया, बिल्कुल सही है, लेकिन रियल सेंस, ये नोशनल है, मैं इसे नोशनल कहता हूँ, रियल सेंस में आपके पास 30,000 नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर महंगाई की दर 5% बढ़ गई तो 25,000 तो महंगाई ले गई हमारा 30,000 में से। फिर आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, अगर 10,000 से ज्यादा आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, एज ऑफ नाउ मैं बोल रहा हूँ, तो बाकी 20,000 जो बचे आपके 30,000 में से, उस पे आपको अपनी स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स लगेगा। तो कई बार इनकम टैक्स 30% वाले जो ब्रैकेट में लोग आते हैं, इनकम टैक्स की ब्रैकेट में आते हैं, उनके लिए FD घाटे का सौदा है। आपका पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मैं रियल सेंस की बात कर रहा हूँ, नोशनल नहीं। शर्मा साहब को जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। I will also like to share the same. It's not a good investment, better for the people who are in the high tax bracket. Okay, sir. There's a next question from Padmini Shukla, and she's asking, after the pandemic, in which securities we have to invest? Directly asking about the securities. हम यही तो बात कर रहे हैं कि आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है, मार्केट की नॉलेज नहीं है, इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है, सेक्टर की नॉलेज नहीं है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नॉलेज नहीं है, तो कृपया करके, मैं सेबी में होते हुए, मैं MP में होते हुए, हर किसी साधारण व्यक्ति को जो बोलता हूँ, नौकरी पेशा लोग हैं, मैं उनको डिस्करेज करता हूँ कि आप सिक्योरिटी मार्केट में ना जाएं। आपके लिए बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स में जाएं, और म्यूचुअल फंड की स्कीम के थ्रू जाएं, और उसमें भी SIP ऐसा एक यूनिक प्रोडक्ट है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं,
एक नया कंसेप्ट है, लोगों को पता है, बहुतों को, सबको ही पता होगा, SWP भी एक कंसेप्ट है। अगर आप अब क्या है कि आपको सबको पता है, मैं थोड़ा इस जैसे शर्मा साहब बोल रहे थे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे शायद पेंशन मिलती है, लेकिन जो अगली पीढ़ी है उनके लिए पेंशन अब एज सच नहीं मिलेगी किसी भी कहीं भी सेक्टर में। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है इस सेंस में कि अगर आपने अपना, जब तक आप रिटायर होते हैं, अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान ऑप्शन ले सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे सपोज कीजिए आपका 2 करोड़ का आपका कॉर्पस बन गया और आप उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड को कहते हैं कि भैया अब मैं रिटायर हो गया हूँ, 2 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे 50,000 रुपया मेरे मुझे 50,000 रुपए की SWP कर दीजिए। मतलब वो हर महीने 1 तारीख को 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। किस लिए आएंगे? घर खर्च के लिए आ जाएंगे। तो वो कहाँ से आएंगे? जो आपने एक्मुलेशन की है। लेकिन वो 50,000 रुपये बहुत ज्यादा चांसेज है आपका प्रिंसिपल टच नहीं होगा, आप इवन आप जो रिटर्न है उनमें से थोड़ा कम होगा, लेकिन आप बाकी जो आपका पैसा है वो रिटर्न कमाता रहेगा। इसलिए SWP भी ध्यान रखिए, एक नया ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो रिटायर होने वाले हैं। लेकिन वो ये जब भी संभव है SWP जब आपने रिटायर होने तक अच्छा कॉर्पस बना लिया है। शर्मा साहब और ऐड करना चाहते हैं तो? बिल्कुल ठीक बात है सर। एंड टू क्रिएट ए बिग कॉर्पस यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, चाहे अमाउंट छोटा हो, जैसे सर ने कहा, बढ़ाते रहे थोड़ा थोड़ा और लगातार करते रहे। जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि 35% गिर गया, तो बहुत से लोगों की SIP नुकसान में आ गई होगी। तो ये डरने वाली बात नहीं है। इफ यू आर कन्विंस कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पर है तो उसे कंटिन्यू करते चलें, बल्कि इस समय और बढ़ा दें तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इन द लॉन्ग रन। दैट्स थिंग फॉर सो श्योर। नहीं, मैं आपको मेरे घर के परिवार का ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी बिटिया ही मैंने 1.5 लाख की SIP करवा रखी है, सीनियर पोजीशन इन लीगल स्ट्रीम। वो मेरे गले पड़ी रहती है कि आपने मेरा क्या कर दिया। मुझे उसे कन्विंस करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मेरा इतना पैसा तो 35 लाख था, ये 25 लाख रह गया। तो मैं उसे बड़े प्यार से कोशिश करता हूँ उसे समझाऊं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि थोड़ा पेशेंस रखिए। ये आप अभी अगर SIP अब इस जंक्चर पर कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर हो सकता है, ईश्वर करे आपकी नौकरी अच्छी तरह चले आपके, तो SIP बढ़ाइए। ये मौका है आपके लिए SIP बढ़ाने का। और SIP डिसकंटिन्यू तो बिल्कुल मत कीजिए जब तक कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आ जाए। नेक्स्ट ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अजय सर। It's from FinFlat Open, and his question is, sir, where do you see Bank of Baroda as a long-term bet? Can it be a multi-bagger stock? In the stage when bailout packages and a possibility of more debt, can Bank of Baroda be a multi-bagger among PSU bank bet? If definitely you see from the price at which it is available right now, it is around 42 rupees or 44 rupees. If you have a long-term horizon, it is definitely one of the second best bets in the public sector proposition. But let me tell you one thing, मेरा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग है। मैं कभी भी निफ्टी से नीचे के स्टॉक पर हाथ नहीं लगाता। दैट इज माय पर्सनल बायस। तो मेरे को अगर कोई बैंक निफ्टी में मिलता है तो मैं उस बैंक के हाथ लगाता हूँ, उससे नीचे होता है तो मैं उसको हाथ नहीं लगाता। कोई भी स्टॉक जो निफ्टी को कंप्राइज करता है, ओनली डील इन दोज। So, but if you want, if you have an appetite for risk, then Bank of Baroda is definitely one of the best banks. And I may quote you one thing. Since I am an auditor of a different number of banks, मैंने इतने अच्छा वर्क कल्चर, मैं अब तक 7 या 8 बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर चुका हूँ। मैंने इतना अच्छा बैंक का किसी का कल्चर, वर्किंग कल्चर ही नहीं देखा जितना बैंक ऑफ बड़ौदा का है। Okay. Thank you. There's the next question. Sir, can I take the question? Yeah, Sure, please. Okay. Next question is from Dr. Sadhna Gupta, and she is asking, is investing in Jeevan Shakti pension plan of LIC beneficial? अब देखिए, LIC की किसी स्कीम पर कमेंट करना, क्योंकि मैं सिक्योरिटी मार्केट से हूँ, इसलिए ठीक नहीं रहेगा। LIC बेसिकली इंश्योरेंस प्रोडक्ट देती है, और जैसा भी शर्मा साहब ने भी बताया, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं व्यक्तिगत एक पर्टिकुलर स्कीम की बात नहीं कर रहा। मैं इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, जरूर होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए।
हमने जब जिंदगी स्टार्ट की थी, तो मैं आपको बताऊं, हमारे समय में मैंने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया था, और मुझे बड़ी खुशी थी, वो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है मैंने। लेकिन जब 30 साल बाद मुझे 1 लाख रुपया मिला, तो मुझे लगा कि ये तो मेरे 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं बची है, मतलब कोई पर्पज ही नहीं है। तो आप 30 साल बाद का देखिए। मैं फिर व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। हेलो, यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, 1 मिनट। मैं फिर व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। मैं अभी मेरे बच्चों की मैंने 5-5 करोड़ की करवाई है इंश्योरेंस, और ये कम है, फ्यूचर के लिए कम है, मैं खुद मानता हूँ ये कम है। आने वाले टाइम में मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आप करा सकते हैं, और इंश्योरेंस में भी आजकल टर्म इंश्योरेंस में भी और ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आपको 99 ईयर्स तक आपकी इंश्योरेंस हो रही, जो पहले नहीं थी, हमारे टाइम 60 तक हुआ करती थी। दूसरा ये है कि आप इंश्योरेंस की प्रीमियम 99 साल तक ना दें, ये भी ऑप्शन है। अब मैंने जो इंश्योरेंस करवाई है उसका करीब 2 लाख रुपए साल का जा रहा है। कितने साल जाएगा? 12 साल जाएगा। 12 साल बाद वो इंश्योरेंस का पेमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कवर 99 ईयर्स तक रहेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी बड़ी प्रीमियम देके बड़ा इंश्योरेंस लीजिए, और उस प्रीमियम देके अपने आप को इंश्योरेंस करवा लीजिए। शर्मा साहब कुछ और जोड़ना चाहें तो? बस मैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, आई डोंट नो द एज ऑफ द लेडी, बट अगर वो 60 साल से आसपास है, 60 साल से ज्यादा की है, तो एक LIC में वय बंधन योजना चल रही थी, पता नहीं अभी भी चल रही नहीं चल रही, नहीं, वो 8% का रिटर्न गारंटी कर रही थी। नहीं, उसका बड़ा प्रॉब्लम है शर्मा साहब, शायद वो अभी कंटिन्यू नहीं, 31 मार्च तक की थी एज ऑफ नाउ। हाँ, वो ऐसे ही है, मेरे को सब पता नहीं है कि वो अभी कंटिन्यू कर रही है नहीं कर रही, पर कुछ लोग जो उनके ऑफिस के ऑफिसर थे वो कह रहे थे शायद कंटिन्यू करेगी इसके बाद, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। नहीं, मैं आपको बता दूं, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा निवेदन कर दूं सबको भी। जी, ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। पहली बात, ये LIC की स्कीम नहीं है, जी जी, ये भारत सरकार की योजना है। LIC इसको ऑपरेट कर रही है बस जी। तो इसमें जो सबसे यूनिकनेस और ब्यूटी वो इसकी ये है कि भारत सरकार ने आपको, ये पर्टिकुलर पेंशनर्स की स्कीम है, जिनको एक माइंड ब्लॉक आपको मिल जाता है कि मुझे पेंशन मिलेगी। अगर आप 15 लाख रुपए डालते हैं, जब रिटायर होते हैं 15 लाख रुपए जमा करा दीजिए, आपको हर महीना 10,000 रुपया महीना पेंशन मिलेगी, आपके अकाउंट में आ जाएगी। 10 साल की स्कीम है अभी एज ऑफ नाउ, आगे बढ़ भी जाए शायद। अगर 10 साल के बीच में आपकी डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट कुछ आ जाते हैं, तो आपके नॉमिनी को 15 लाख रुपया लास्ट पेंशन मिल जाएगी। अगर आप 10 साल तक जिंदा रहते हैं तो 15 लाख आपको वापस मिल जाएंगे। इसमें और भी है, अगर आप इसको एनुअल चाहते हैं, 10,000 रुपया महीना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं मुझे तो 12,000 रुपया महीना साल का दीजिए, तो आपको शायद 15 लाख नहीं 14 लाख समथिंग ही पैसा डालना, 14.5 लाख रुपए देने। हाँ, इसमें ये भी है। और तीसरी बात, ये बड़ी सिंपल गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी। 15 लाख पे आपको गवर्नमेंट ने 8% ब्याज फिक्स कर दिया, जो कि यूनिकनेस है। आजकल कहीं भी ब्याज फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी आपको कि हम आपको 8% ब्याज इस स्कीम में देंगे ही देंगे, चाहे स्कीम में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। ओके सर। और नेक्स्ट। Okay, next question. Sir, actually there is a question from Dr. Rajkumar and he is asking, is this right time to invest in cryptocurrency? In? Cryptocurrency? हाँ जी सर, actually ये I also want to know the same sir. ये मेरा फील्ड नहीं है सर। ये मेरे भी फील्ड से बाहर है। और बड़ी ईमानदारी से जो फील्ड में नहीं है उसकी गलत राय नहीं देनी चाहिए। जी, Okay, fine sir, it's okay sir. Sir, there is a next question from Suresh Babu and he is asking, is Nifty BES is going for investing right now? Nifty B's? हाँ जी sir, Nifty BES sorry is going for investing right now, is good for investing right now. बोलिए शर्मा जी, बताइए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर, डेफिनेटली। अगर आप पूरा बाजार खरीदना चाहते हैं तो आप Nifty 20 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप एवरेजिंग अगर पूरे बाजार की चाहते हैं तो Nifty 20 भी परचेज कर सकते हैं। आप वहाँ स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, आप जो है पूरे निफ्टी को खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें कुछ भी नहीं है। ये जैसे म्यूचुअल फंड बास्केट बनाते हैं, ये भी एक बास्केट है। There is a question from Bhuvnesh Sharma and
he wants to convey his regards to Suryakant Sharma sir and Professor Ajay Sharma sir. धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तो हो गया और कुछ है? Most of the questions have been covered, sir. Yes, sir. है और हो गया? Yes, sir. Most of the questions have been covered. बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, सूर्यकांत जी पीसी जम्मू से बोल रहा हूँ। अरे नमस्कार। आप आए थे जम्मू बिजनेस स्कूल में? बिल्कुल आया था साहब, बिल्कुल आया था, और दोबारा आऊंगा। बिल्कुल। अब सर मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो हम आपको अपने साथ रखेंगे फिर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। बहुत धन्यवाद। अब हमारा मिशन, हमारा मिशन ये है कि जो अगली जनरेशन है उसको एक एटलीस्ट कुछ दिशा दी जाए, जितना वो समझते हैं वो बाकी उनकी मर्जी है। सर हमारे तो दिशा दिखाना ही होता है। बस। We try our best, sir. हम कोशिश करेंगे। Next. Yes, sir. Okay. And hope all the questions are answered. And at last, I would like to invite convener of the event, Professor Dr. P.K. Agarwal, for what. Hello, sir. अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। Sir, please. In fact, I was continuously listening both the speakers, Surkant Sir, I have one question. Surkant ji and Ajay Sharma ji. Hello, sir. I have one question. नहीं, अग्रवाल साहब की आवाज नहीं आ रही है बीच में। अग्रवाल सर अनम्यूट कर लीजिए। Sir, I have one question in my mind. Sandeep, please hold up. We will answer the question in the end. You can drop in the comment. बोल दीजिए, अग्रवाल साहब, or you can read it to us. Sandeep sir, Please turn off your mic. please turn off your mic. We will get back to you. हाँ सर, बोलिए अग्रवाल साहब। Sir, I am highly thankful to Surkant ji and Dr. Ajay Sharma for his valuable suggestions, their valuable insight about mutual funds, about share market, etc. And they very lucidly said that what a common man can do for saving, for making his assets in the future, for saving. One thing I would like to ask sir before going for formal vote of thanks. He has a group. Many people, they are not aware of mutual funds, share market, and Dr. Sharma has said that we can invest in gold also. So what a common man should do to make his secondary income, because if a person is 30 years old, so he can generate additional incomes after he reaches the age of 35. The question is from to both the speakers. शर्मा साहब, मेरा इसमें निवेदन है कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम हमने कंसेप्टलाइज किया था, डिजाइन किया था, उसका पर्पस था जनरल अवेयरनेस की बात करना ज्यादातर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली हम म्यूचुअल फंड पे ही कर सकते हैं। 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम होगा, उसमें म्यूचुअल फंड की ए से जेड तक हम बात करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे रेगुलेट होता है, इसकी कौन कौन सी स्कीम है, स्कीम्स के फीचर्स क्या क्या हैं, किसको म्यूचुअल फंड कौन सा सूट करता है, टाइम होराइजन क्या। ये तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड मैंने जनरल टच किया था अभी, बहुत कम, मतलब वो भी। तो मैं चाहता हूँ अगर आपकी सुविधा हो, जब भी अपने जब भी आपको समय आपको लगता है, एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हम म्यूचुअल फंड के लिए म्यूचुअल फंड पे ही कर सकते हैं। अब जहां तक आपने बात की, वो सबसे बड़ी आवश्यकता है आजकल, ना सिर्फ मेरी सेकेंडरी इनकम हो, बल्कि जब मैं एक ऐसी अपने उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाऊंगा, जब मैं अपनी आय से सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, तब मेरा खर्चा कैसे चलेगा, उसकी भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी जो पेंशन है वो साफ लिखा हुआ है, अर्न योर पेंशन, अपनी पेंशन खुद कमाइए। पहले पेंशन आपका राइट था, पेंशन राइट नहीं है, इसलिए एनपीएस कंसेप्ट आया है गवर्नमेंट में। इसलिए जो आपने बोला सेकेंडरी इनकम,
सेकेंडरी इनकम लिए ही सारी बातें हम कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड इसका बहुत बड़ा सोर्स, बहुत इफेक्टिव, बहुत कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक सोर्स आपका बन सकता है, बशर्ते 2-3 बातें हैं। जैसा शर्मा साहब ने भी बोला, शुरू से स्टार्ट कीजिए, हमेशा निवेश करते रहिए, निवेश बढ़ाते रहिए, निवेश को बीच में रोकिए मत। शर्मा साहब कुछ और बोलना चाहें तो। डॉक्टर शर्मा, इफ यू हैव एनी रिफ्लेक्शन। हाँ सर, मेरा एक्सपर्टीज म्यूचुअल फंड्स पे बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी के एक्सपोजर की बात करूं तो डेफिनेटली सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो लोग पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट बेट फॉर दीज पीपल। एंड इफ यू हैव नॉलेज यू कैन प्ले डायरेक्टली आल्सो। एज सर हैज सेड कि जो लोग पैसिव इन्वेस्टर है उनको तो म्यूचुअल फंड का रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। तो जो उनको थोड़ा नॉलेज है वो डायरेक्टली भी जाकर थोड़ा सा एक अच्छे एनालिसिस के साथ प्ले कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टली आल्सो यू कैन अटेन रियली वेरी गुड रिटर्न्स। एंड एज आई सेड कि वेल्थ क्रिएशन बिना इक्विटी के तो नहीं होना सर, ये तो पक्का है। ओके, और दूसरा एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें कि कभी भी आप आज की दृष्टिकोण से भविष्य को मत देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल, एक्चुअली जब प्रेजेंटेशन हम देते हैं तो मैं बात करता हूं, अगर आपका घर खर्च आज 30,000 रुपया है, 25 साल बाद अगर महंगाई की दर 6% ही रही, जैसी कि बहुत ज्यादा चांसेज रहेगी, शायद ज्यादा भी हो, तो आपके घर खर्च के लिए 3,72,000 रुपया चाहिए। तो आप 3,72,000 की सोचिए वो कहां से आएगा। 25,000 की बात मत कीजिए, हम उस फिगर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो 3,72,000, इसका मतलब आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए कि आपको करीब करीब 4 लाख रुपया पर मंथ, मतलब 48 लाख रुपया साल का आपको रिटर्न मिले। इतना कॉर्पस होना चाहिए 30 साल बाद। तो इस चीज को कभी भी अपने नजर से हटाइए मत, ये बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आप 30 साल बाद के बारे में सोचें। अगर तो जब सोचेंगे तो आप करेंगे, तो उस चीज को आप कभी भी इग्नोर आज भी इग्नोर मत कीजिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए। हाँ सॉरी, हाँ द्वार साहब। सर, so before we formally conclude, I would like to invite Dr. Kapil Garg, because in fact he was working behind the curtains and he was coordinating the program. So I would like to invite Dr. Kapil Garg to say a few words. Dr. Kapil. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes. Sir, thank you very much, sir. Good afternoon all. बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वित्तीय एवं निवेश योजना पर जो हमारे 2 एक्सपर्ट थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सूर्यकांत शर्मा जी ने जिस सरल भाषा में वित्तीय योजनाओं को समझाया है, वाकई में वो सराहनीय है। और हम डॉक्टर अजय शर्मा जी ने जिस तरह से तकनीकी बातों को बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ आज 2 फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सपर्ट नहीं, 2 डॉक्टर थे, जिसमें से सूर्यकांत शर्मा जी एक फिजिशियन थे और अजय शर्मा जी एक सर्जन थे। उन्होंने एक जनरल टर्म्स में इलाज बताया कि प्रेजेंट कंडीशन में हम कैसे कर सकते हैं, और अजय सर ने पूरा उसकी सर्जरी पोस्टमार्टम कर डाला। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला। इसके बाद में ज्यादा समय ना लेते हुए अपने शिक्षक साथियों को, जो लगभग 2 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस 2 मिनट में अपने शिक्षक साथियों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग ये वेबिनार में जुड़े हैं, इसी तरह से लॉकडाउन में पिछले 2 महीने से लगभग हम अपने छात्रों के साथ भी निरंतर जुड़ रहे हैं। और भारतीय शिक्षकों ने ये साबित कर दिया है कि तकनीक का उपयोग पारंपरिक पद्धतियों में कैसे किया जा सकता है। भारत के बारे में कहा जाता था कि शिक्षक एक चौक और एक बोर्ड तक सीमित रहता है, लेकिन इस लॉकडाउन में जो हम लोगों ने इस तकनीक का प्रयोग किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। हमने विद्यार्थियों से संपर्क किया, हमने उनकी सहायता की,
हम उनको पढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में शिक्षा के मामले में कुछ हमें ऐसा लगा होगा कि विद्यार्थी कुछ पिछड़ गए, लॉकडाउन में चले गए। शिक्षक के लिए इंटरनेट के जो साधन थे वो पहले मनोरंजन के साधन माने जाते थे, लेकिन वर्तमान में हम शिक्षकों ने ये साबित कर दिया है कि हम मनोरंजन के साधनों के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षक देश का भविष्य होता है और शिक्षक के हाथों में देश का भविष्य होता है। हमें कोई सीमाएं नहीं बांध सकती। मैंने अमिताभ बच्चन साहब की एक पिक्चर देखी थी जिसमें उन्हें घर से निकाल दिया था, तो उन्होंने घर के बाहर ही अपनी क्लास लगा दी थी। और ये प्रेजेंट कंडीशन भी हम लोगों की इसी तरह की दिखाई दे रही है कि हमारी कुछ लॉकडाउन की वजह से जो क्लासेस बंद हो गई थी, हमने इंटरनेट के माध्यम से हम आपस में भी जुड़ रहे हैं, हम अपना ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं और छात्रों का भी प्रचार प्रसार, जो छात्रों का ज्ञान है वो बढ़ा रहे हैं। वास्तव में हम भी लॉकडाउन के कोरोना धन्यवाद सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे समस्त शिक्षक साथी नित नए प्रयोगों के साथ भारतीय शिक्षा एवं समाज को एक नई। धन्यवाद सर। अग्रवाल साहब, मैं भी आपका थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कपिल, and I am highly thankful to respectable Surkant ji and Dr. Ajay Sharma for his valuable suggestions for the teachers community as well as learners who were associated with us from the last 2 hours, and due to certain technical reasons few people they are not able to connect, few teachers were not able to connect. We are going to send recordings of this particular session if they wish. So with these words, and I also say that both of you, as Dr. Kapil has said, that one was the physician, another was the surgeon, and very lucidly they have explained, that what is to be done. Because, you know, the middle income group, they have limited income and they don't know for how long they have income. So I think and I hope also that this webinar would have given a insight, no doubt not a detailed insight, as Dr. Respectable Surkant ji has said that please arrange a webinar on mutual funds. Certainly sir, we would like to arrange a specific seminar on mutual funds, and to Dr. Ajay Sharma that we would also like to have another session with him, or complete postmortem is to be done of these activities, because our finance, they are not to be earned as a salary or as a return as a salary, but they must be earned as a return, as a secondary income. Only then the middle income class can succeed. With these words, with appreciation, I highly thank both of my speakers, respectable Surkant ji and Dr. Ajay Sharma, for valuable time they have spent with our teachers community. Thank you very much. अग्रवाल साहब, मेरी तरफ से भी आपको, विशेष तौर पर आपको, कपिल, डॉक्टर कपिल को जो मेरे छोटे भाई भी हैं, और सौरभ साहब जिन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया, आयोजन किया, आप तीनों को बहुत बहुत साधुवाद। भविष्य में हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे और जब चीजें सुधरेगी तो हम फिजिकली भी मिलेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Sure sir, our pleasure sir. Sure sir, thank you. Thank you sir. very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Dr. Sharma Dr. for Sharma sharing valuable time, and we hope that next time we would be having, you know, a complete analysis of stocks and this share market, so that a common man can benefit. Thank you very much sir. मैं इसमें एक और सजेशन देना चाहूंगा अग्रवाल साहब, आपके बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी मार्केट का टेक्निकल सेशन भी हम रख सकते हैं। बिल्कुल सर,
वो बच्चों के लिए सिक्योरिटी मार्केट क्या है, मतलब वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जी जी कि सिक्योरिटी मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इसमें प्लेयर हैं, उनका रोल क्या है, सेबी का रोल क्या है, वो तो उनके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सेशन म्यूचुअल फंड के अलावा मैं चाहता हूँ, अगर आप जब भी सुविधा हो आपकी हम रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा। बिल्कुल शर्मा सर, साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। शर्मा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज हाँ, मुझसे सर, मिलने का आप- मौका मिला। मेरे को तो आपके साथ स्पीकर होने का ही सौभाग्य है सर। अरे नहीं, आप मेरा सौभाग्य आपसे मिला। ऑफ कोर्स कपिल साहब इसमें कड़ी कपिल साहब भी हैं। जी कपिल जी साहब ने सर, जोड़ा थैंक यू है। सर। श्योर श्योर श्योर, मैंने बताया सर, शिक्षकों को बांध नहीं सकते हम, कहीं भी जुड़ जाएंगे हम लोग। आगे भी मिलते रहेंगे हम, आगे मिलते बिल्कुल रहेंगे। सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी Thank you, मच, sir. थैंक यू वेरी मच, Okay. थैंक यू।